ملک میں جاری سیاسی ہلچل پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے خبر لیتے ہیں بجلی کی۔ ملک میں گرمیاں شروع ہوتے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب آ گیا ہے، لیکن وزارت توانائی کا دعویٰ ہے کہ بجلی وافر ہے، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ صرف بجلی چوری اور بل ادا نہ کرنے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ذرائع نے کہا ہے کوئلہ، گیس اور فرنس آئل کی قلت کی وجہ سے بجلی کے متعدد پاور پلانٹس بند پڑے ہیں۔ گزشتہ روز تکنیکی خرابی کی وجہ سے 3 جوہری پاور پلانٹس کل ٹرپ کر گئے، انہیں چند گھنٹے بعد بحال کیا گیا، لیکن بجلی کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے 3000 سے زائد میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بجلی تو وافر ہے، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، صرف بجلی چوری اور بل ادا نہ کرنے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور ذرائع نے یہ کہا ہے کہ کوئلہ، گیس اور فرنس آئل کی قلت کی وجہ سے بجلی کے متعدد پاور پلانٹس بند پڑے ہیں۔ جبکہ فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر نیپرا میں سماعت مکمل، بجلی ایک ماہ کے لیے 4 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 68 پیسے اضافے کی تجویز ہے۔ چیئرمین نیپٹا نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے باعث صارفین پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ فروری میں ہائیڈل سے 14% کم بجلی پیدا کی گئی، اس کمی کو فرنس آئل اور LNG پیداوار سے پورا کیا گیا۔ ملک میں 5372 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ فیول کی قلت سے 2139 میگا واٹ بجلی کم پیدا ہو رہی ہے۔ حکومت 40,000 میگا واٹ کی صلاحیت کا دعویٰ کرتی ہے۔ اگر 5-7 ہزار میگا واٹ کم ہو بھی گئی تو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کپتان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث ہونے جا رہی ہے۔ آج سپیکر ووٹنگ بھی کرا سکتے ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی پر ہنگامہ خیز اجلاس 4 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس کا 24 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بحث کا آغاز کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کیا گیا ہے، جس پہ دھمکی آمیز خط کے مندرجات پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس یا پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں زیر بحث لانے پر غور کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر سے۔ علی شیر، کیا اطلاعات ہیں؟ اسلام آباد سے کیا ہونے جا رہا ہے آج؟ جی بالکل، آج ملک کی پارلیمانی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے کہ جب پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد باقاعدہ بحث کے طور پر منظور کی جا چکی ہے اور آج سے اس پہ بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شوکت عزیز شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اور آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پہ بحث کا آغاز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کریں گے اور نقطہ نمبر 4 جو ہے وہ رکھا گیا ہے قومی اسمبلی کے ایجنڈا میں۔ ٹوٹل 24 نکاتی ایجنڈا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ بحث ہی ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو آج 3 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جس میں تمام ارکان جو ہے وہ اپوزیشن کے شریک ہوں گے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا اپوزیشن کا، لیکن اس سے قبل جو گزشتہ رات سے کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ پیچ اپ کرانے کی کوششیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، رات کو اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس کی روشنی میں شہباز شریف کے پاس جو ہے وہ اس وقت جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، پارلیمانی پارٹی نہیں پارلیمانی لیڈرز، ان کی ایک اہم ملاقات جو ہے وہ شروع ہے، جس میں جو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ آیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی طرح کا پیچ اپ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ لا کر جلد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جا سکے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا جو اہم اجلاس ہے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، جس میں وفاقی وزراء سمیت جو سینئر قائدین ہیں PTI کے وہ شریک ہوں گے اور اس میں ایک جو اعلان کیا گیا ہے کہ اتوار کے روز اسلام آباد میں PTI دوبارہ جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی پلاننگ ہوگی اور خاص طور پہ جو دھمکی امیز خط ہے اس کے حوالے سے 3 فورمز ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ کیا اسے پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں خط کو نہیں بلکہ اس کے مندرجات کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بیان کر دیں یا وزیر اعظم بیان کر دے۔ ایک فورم جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا ہے کہ اس میں زیر بحث لایا جائے اور تیسری جگہ جو ہے وہ اسپیکر نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی
बराए कौमी सलामती, जिसको स्पीकर जो है वो हेड करते हैं, उसका इजलास बुलाया जाए और उसमें इस खत के मंदरजात ज़ेर बहस लाए जाए। तो ये आज की जो सूरत हाल है वो होने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया है कि ये इजलास आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है। अहम डेवलपमेंट है, आगाह किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये अहम इजलास आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है। अदम एतमाद में अमरीका के मुलव्वस होने के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकियां में इस खत से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल भी सामने आ गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अदम एतमाद में अमरीका के मुलव्वस होने के इल्जामात में सदाकत नहीं, पाकिस्तान में आइनी अमल का एहतराम करते हैं और कानून की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। हमें धमकी दी गई है, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। अदम एतमाद में अमरीका के मुलव्वस होने के इल्जामात में सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकियां में इस खत से मुताल्लिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल भी सामने आ गया। मौक़र वेबसाइट ने अमरीकी महकमा ख़ारजा को भिजवाए सवालनामे में पूछा, क्या महकमा ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया बयान से वाकिफ़ है? क्या महकमा ख़ारजा ने बज़रिया इस्लामाबाद सफारतखाना पाकिस्तान से इस हवाले से कोई राब्ता किया है? महकमा ख़ारजा का इन इल्जामात के हवाले से क्या रद्द अमल है? इस सवालनामे पर अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने जवाब दिया, इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। धमकियां में इस खत से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, पाकिस्तान में आईनी अमल का एहतराम करते हैं और कानून की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को बैनुल-अक़वामी साजिश करार दे रहे हैं। इस्लामाबाद के जलसा आम के दौरान इमरान खान ने धमकियां में इस खत भी लहराया, लेकिन किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इमरान खान की मसनूई अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है। आज वोटिंग हुई तो इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत का आखिरी दिन होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेर रहमान ने कहा है, स्पीकर कौमी असम्बली के पास अदम एतमाद पर वोटिंग में ताख़ीर का कोई आईनी और अखलाकी जवाज़ नहीं। इमरान खान किस गैबी इमदाद के इंतजार में है? डूबती हुई हुकूमत अब मुबैना खत को सहारा बनाकर बचना चाहती है। कारकुनान को इंतशार पर उकसाने से बेहतर है इमरान खान इस्तीफा दें। तहरीक अदम एतमाद के लिए एक एक वोट कीमती हो गया है। नासिम जोकियो कत्ल केस में नामजद मुल्ज़िम पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम दुबई से पाकिस्तान पहुंचा। एयरपोर्ट पर सिंध के सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया और अपनी हिफाजत में लेकर रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक जाम अब्दुल करीम तहरीक अदम एतमाद में अपना वोट इस्तेमाल करेगा। वो नासिम जोकियो कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट से 3 अप्रैल तक हिफाजती जमानत पर है। जाम अब्दुल करीम ने जमानत में तौसी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो इल्ज़ामात का सामना करना चाहता है। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध ने नासिम जोकियो कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने के लिए IG को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि मौजूदा तफ्तीशी अफसर नाअहल है। उसने प्रोसिक्यूटर जनरल के बगैर इंसदाद दहशतगर्दी की एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत में पेश होकर अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सिंध में इंसाफ का हुसूल नामुमकिन है। नासिम जोकियो कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन का इंचार्ज मुर्तज़ा वहाब है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने अदालत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के बाद प्रोसिक्यूशन ने फाइल रोकी हुई है और अब महकमा दाखिला तफ्तीश मुंतकिल करने का कह रहा है। शिरीन जोखियो ने कल कहा कि मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं, मुझ में इन बड़े लोगों से लड़ने की सकत नहीं, इसलिए मैं तमाम कातिलों को माफ़ कर रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं लड़ना चाहती थी। उसने कहा मैं बिकी नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इससे बड़ा अफसोसनाक दिन नहीं हो सकता।
उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील और मुसाफिरों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। कंवर नवीद एयरपोर्ट लाउंज पर पहुंचे तो मुसाफिरों ने उन पर पैसे लेकर काम करने का इल्ज़ाम लगाया, फिर उन्हें भगोड़ा करार दिया। कंवर नवीद जमील ने मुसाफिरों को कहा कि तुम लोग अपने एजेंडे पर काम कर रहे हो। मुसाफिर ने जवाब दिया कि वो पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, अपने पैसों से कराची से इस्लामाबाद आए और अब अपने पैसों से ही वापस जा रहे हैं। देखो यार, आप अपने एजेंडे पे काम कर रहे हो ना। एजेंडा क्या है? आप पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप 3 महीने पहले पाकिस्तानी एजेंडे पे अपने एजेंडे पे हो यार। 3 महीने पहले आप लोगों को मारा गया, मुल्क के लिए औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। जो आपने इजाज़ किया था, अभी तो आपने इजाज़ किया था, आप मिल गए। सिर्फ एक बात बताए, 3 साल पीटीआई के साथ क्या किया आपने? बताएं, वजारतों के मजे क्यों किया आपने? 3 साल तक वजारतों के मजे किए। कितने मिले ये बताएं? कितने मिले ये बताएं? आपको मिले पैसे यार, पैसे लेकर आ गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल अब भी अमरीका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पे रोल पर हैं, लेकिन शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना ने भी तस्दीक की है कि शहबाज गिल अब भी बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं और उनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। आप पंजाब की काबीना देख लें, आप फेडरल की काबीना देख लें, आपको वाज़े नजर आएगा कि इमरान खान की टीम हर लिहाज से इनसे अच्छी है। मुखालफीन पर जारहाना वार, मगर निकला अपना भी वही किरदार। वजीर आजम का मावन खुसूसी भी, अमरीकी यूनिवर्सिटी का मुलाजिम भी। शहबाज गिल का अमरीकी अकामा सामने आ गया। शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। अंग्रेजी अखबार को यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना ने तहरीरी जवाब में तस्दीक की है कि शहबाज गिल क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं और सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी मुलाजिम के तौर पर शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के उसूल और खुर्दा फरोशी के उसूल सिखा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के मुताबिक तमाम मावन खुसूसी और मुशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर वजीर आजम के तमाम मावन खुसूसी के असासों की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन शहबाज गिल ने अमरीकी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत से काबीना डिवीजन को आगाह किया और ना तनख्वाह बताई। अलबत्ता अपने डिक्लेरेशन में पाकिस्तान की कुछ जायदादों, अमरीका में एक घर और नकद 3.76 मिलियन रुपए के बारे में बताया। 65 लाख रुपए से जायद की 2 गाड़ियां और 55 लाख रुपए का सोना भी है। कुछ बात करेंगे पंजाब की सियासत की। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? सियासी दंगल तेज हो गया। हुकूमत और अपोजिशन अपने राब्ते तेज कर दिए। चौधरी परवेज इलाही सरगर्म है। वोट हासिल करने के लिए तमाम सियासी जमातों से राबिते तेज कर दिए गए। नून लीग और तरीन ग्रुप भी मुतहरिक है। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। इस पर डिटेल्स क्या है, ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से हम जानेंगे। अयाज बताइएगा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली में, जहाँ पर इक़्तिदार के ऐवानों का दूसरा बड़ा मार्का लड़ा जाना है। पहला मार्का तो इस्लामाबाद में होगा, लेकिन दूसरा मार्का परवेज़ भाई के वज़ीर पंजाब नामज़द होते साथ ही शुरू हो चुका है। परवेज़ भाई कल लाहौर पहुँचते साथ ही उन्होंने काफ़ी मसरूफ़ अपना वक्त गुजारा। आते साथ ही उन्होंने PTI के सूबाई वज़रा से मुलाकात की, एक मीटिंग की जिसमें राजा बशारत, मियाँ महमूद रशीद, सप्तान खान, डॉक्टर मुराद रास और दीगर वज़रा शामिल थे। आते साथ उनकी उन्होंने ड्यूटियाँ साइन की कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप और अब्दुल रहीम खान ग्रुप से राब्ता करें। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो मुनहरिफ एक ग्रुप है उसके अरकान असम्बली से मुलाकात की, जिन्होंने उनको अपनी पूरी हमायत का यकीन दिलाया। उसके बाद रात को उन्होंने PTI की ख़वातीन जो मेंबरान पंजाब असम्बली हैं उनके एजाज़ में शाइया दिया था, जिसमें सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की। आज जहांगीर तरीन ग्रुप का हतमी मुशावरती इजलास भी होने जा रहा है। इसहाक खाकवानी की राजगाह पर आज सपहर के वक्त मुतवक्को है, जिसमें वो हतमी फ़ैसला करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून और चौधरी परवेज़ भाई की जानिब से जो राब्ते किए गए हैं किसको वोट देंगे। इस इजलास में जहांगीर तरीन जो है वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे और जहांगीर तरीन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत से जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से भी अपने जो ग्रुप के अरकान असम्बली हैं उनको एतमाद मिलेंगे। इसके साथ साथ ही उनके ग्रुप के अरकान असम्बली यहाँ मुस्लिम लीग नून और चौधरी परवेज़ भाई की जानिब से जो राब्ते किए जा रहे हैं उसके हवाले से उनसे मुशावरत करेंगे। इसके साथ साथ ही आज छीना ग्रुप का भी इजलास मुतवक्को है और अब्दुल
सलीम खां ग्रुप का भी इजलास मुतवक्को है। इंतखाबी मैदान सज गया है पंजाब में और तमाम जो धड़े हैं वो अपनी अपनी बसात भर सियासी कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इस मौजूदा सियासी बहरान में वो सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं। चौधरी परवेज़ आई बहरहाल एक मजबूत और कदावर शख्सियत है। पहले वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं 5 साल और उसके बाद नायब वज़ीर आज़म के होते पर भी फायज रहे। उससे पहले भी उनका एक बड़ा लंबा सियासी सफ़र है और उनके बड़े अच्छे सियासी ताल्लुकात हैं। वज़ारत आला तो क्या, इमरान खान कहें तो सियासत भी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है वज़ारत आला की कुर्बानी कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। एक इंटरव्यू में उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि माइनस बुज़दार की बात करने वालों की गाड़ी पर झंडा मेरे दस्तखत से लगा। उन्हें निकाल सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया। किसी से कोई गिला नहीं है। खामोशी से पर्दे के पीछे बैठकर काम करता रहूंगा। पंजाब की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं कि पहली बार जो MPA बना हो वही वज़ीर आला भी बना हो। 3.5 साल में एक दिन छुट्टी नहीं की। अपने ज़ाती काम के लिए भी कहीं नहीं गया। उस्मान बुज़दार के मुताबिक वो पढ़े लिखे इंसान है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि मैंने क्या क्या काम किए। अभी इमरान खान की कश्ती नहीं डूबी, डबल इंजन लगेगा और कश्ती भागेगी। सूबाई वजीर सब्तैन खान का दावा। कहा कि वज़ीर आज़म ने अभी आखिरी पत्ता शो करना है। आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है PTI के मुनहरिफ अरकान को गलती का एहसास हो जाए और वो अखलाकी बुनियादों पर वापस आ जाएं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सब्तैन खान ने मज़ीद कहा कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएं और 200 वोट लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग का अमल कैसा चल रहा है तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे। सवात से होंगे हारून सिराज, एबटाबाद से होंगे हारून तनोली, टांग से मोहम्मद अयूब और अपर दीर से हमारा साथ देंगे शीरी हजरत। सबसे पहले हम रुख करेंगे सवात का। हारून सिराज से तफसीलात जानेंगे। हारून बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जो है इलेक्शन का प्रोसेस जारी है। इस वक्त पुरअमन माहौल में इलेक्शन का सूरत-ए-हाल जारी है। इस वक्त मैं वोटकी के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पे 15,000 के करीब लगभग के वोट है। वोटर जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसके हक में अपने वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो वोटर है वो यहाँ पे मौजूद है और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो अपने वोटर को मनाने के लिए यहाँ पे ला रहे हैं और जो उनके पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनके हक में जो है वोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और तो मजमूई तौर पर 15,000 के करीब यहाँ पे वोटर्स हैं। मजमूई तौर पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। स्वात पुलिस के जवान जो है 9,000 के करीब पुलिस जवान यहाँ पे तैनात हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको सिचुएशन बताता चलूँ तो अब तक जो है कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। हारून आप हमारे साथ ही रहिएगा। एबटाबाद का रुख करेंगे, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हारून तनोली। हारून आप बताइएगा कि इस वक्त एबटाबाद में पोलिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज जो पोलिंग का अमल है सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जो कि बदस्तूर जारी है। इस वक्त तहसील लौर तनावल के एक पोलिंग स्टेशन शेरवान हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग जो बड़ी स्मूथली जारी है और वोटर जो है वो खुशी से अपना वोट पोल करके जा रहे हैं। अगर बात की जाए एबटाबाद की तो एबटाबाद की 4 तहसीलों में 9 लाख से ज़ायद जो वोटर है आज अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 744 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो चारों तहसीलों में बनाए गए हैं, जबकि 93 पोलिंग स्टेशन जो एहसास है और उसमें 48 पोलिंग स्टेशन जो है इंतहाई एहसास अहमियत के अमल है, जिस हवाले से मुख्तलिफ जो एहसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर CCTV कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं जिनको एबटाबाद से मॉनिटर किया जा रहा है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो एबटाबाद में चारों तहसीलों में 3400 से ज़ायद पुलिस की नफरी जो है वो तैनात है। ठीक है हारून, साथ रहिएगा। टांग का रुख करेंगे, मोहम्मद अयूब से हम तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अयूब बताइएगा टांग में अभी तक टर्नआउट कैसा रहा?
मैं इस वक्त साउथ वज़ीरिस्तान वाना में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि फाटा इंज़माम के बाद पहली बार साउथ वज़ीरिस्तान व दीगर खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला उनमें पहली बार जो बल्दियाती इलेक्शन है वो हो रहे हैं। पोलिंग का जो अमल था वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। इस वक्त मेरे साथ यहाँ की जो मकीन है वोटर्स है वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन का अमल जो शुरू है वो जो प्रोसेस है क्या वो उनसे मुतमईन है? जी हम जो है ना ये प्रोसेस से मुतमईन इसलिए नहीं है कि अजीब मोहम्मद अयूब हमें अपडेट कर रहे थे। टांग से अब रुख करेंगे अपर दीर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शीरी हजरत। शीरी हजरत, आप बताइएगा कि अपर दीर में वोटिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देर बाला के क्या खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में जो है आज सुबह से बल्दियाती इंतखाबात जो है शुरू हो गए। देर बाला में भी बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। सुबह के वक्त टर्न आउट लोगों का जो था वो कम था, लेकिन जो ही टाइम गुजरता जा रहा है और अभी तकरीबन 12 बज गए हैं तो 12 बजने के करीब जो है लोगों का रश ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ कैंपों में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी आज़ाद उम्मीदवारों के जो कैंप है वो लोगों से भर गए हैं और लोग दड़ादड़ जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन जो है आ रहे हैं। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 28 पे यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है और वोट अपने अपने कैंडिडेट के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इससे पहले हारून सिराज और हारून तनोली और दीगर भी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन तरीके से जारी है। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹3.27 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत पर किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। कराची के बिजली सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹3.27 फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल के बिल्स पर होगा और कराची की बिजली सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1100 मेगावाट तक पहुंच चुका है। इस वक्त लेस्को की बिजली की तलब 3900 और रसद 2800 मेगावाट है। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1100 मेगावाट तक पहुंच गया है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेओ।